He heals the broken-hearted and binds up the wounds. For our meditation this morning, I have chosen from Paul's letter to Romans chapter 1 verse 12. That is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine. Good morning, friends. Whatever we may be in the ministry and mission of the Lord, we need to recognize the faith of others which can encourage us as well. Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is encouraged by each other's faith. Paul, being given a vision by the Lord himself and commissioned to go to the others other than the Jews, especially to go and spread the word, has this wonderful humility that he wants to go and visit the people, not only to help them in their faith, but to be encouraged himself in his faith journey. For he understood that everyone who had faith in the Lord had their own way of encouraging the other person's faith. Paul believed that it is not only the people who think they are strong in faith will encourage the others. It is also important that we in the ministry and mission also be encouraged by others through their faith, their simple faith, their faith so deep in the Lord, in spite of all the challenges that they go through, will encourage the people in mission and ministry itself. Friends, we all claim to be followers of our Lord and Savior Jesus Christ. We understand that we have been in faith journey for quite some time. We also feel that our faith is quite strong. But it is also important that when we are in the ministry, we not only go to encourage others in faith, we not only go and help people to walk in faith, we also need at certain point of time encouragement in our faith journey. For we will also face challenges which may help us, challenges which may take us through difficult path. It is at that point in time we would need people or people of faith to encourage us so that we will also be encouraged to walk more in faith, be stronger, go deeper, and help others to walk in faith. So it is important for each one of us to be encouraged in faith, and we need to encourage others as well. May the Lord give us the strength to encourage others, also give the humility to be encouraged by others. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you, we praise you, we honor you. Help us, Lord, in our faith journey to be encouraged and to encourage. In Christ's name we pray. Amen. वे खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है रोमियो अध्याय 1 और उसका 12वां वाक्य, अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं और उसकी विशेष सेवा में होते हैं, तब हम ऐसे लोगों के विश्वास को देखें जिससे हम प्रोत्साहित होते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है एक दूसरे के विश्वास के द्वारा प्रोत्साहित होना। पौलुस को प्रभु के द्वारा स्वयं दर्शन दिया गया था और उसे आदेश दिया गया था कि वे दूसरों के पास जाएं, यानी जो गैर यहूदी हैं, और वे वचन को बांटे। और प्रेरित पौलुस की ये नम्रता है कि वे वहां जाकर दूसरों के साथ शब्द बांटने के अलावा स्वयं प्रोत्साहित होना चाहता है उनके विश्वास के द्वारा, क्योंकि उसे पता था कि प्रत्येक के पास अपना तरीका था दूसरों के विश्वास को प्रोत्साहित करने का। पौलुस ने ये विश्वास किया कि सिर्फ वे लोग जो अपने आप को समझते हैं कि उनका विश्वास अटल है, वही दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन वह भी कर सकते हैं जो सेवकाई में है और सेवा करते हैं, वो भी दूसरों के विश्वास के द्वारा प्रोत्साहित हो सकते हैं। ऐसे लोगों के विश्वास से जिनका विश्वास मामूली है और वे चुनौतियों का सामना करते हैं, और ऐसे लोगों का विश्वास
जो लोग सेवकाई में हैं उनको प्रोत्साहित करता है। मित्रों, हम सभी कहते हैं कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं और हमें लगता है कि बहुत समय से हम इस विश्वास की यात्रा में हैं और हमें लगता है कि हमारा विश्वास काफी दृढ़ है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है जब हम सेवकाई करते हैं कि हम न केवल दूसरों को उनके विश्वास में प्रोत्साहित करें, हम न केवल लोगों की सहायता करें कि वे विश्वास में चलें, लेकिन हमें भी समय समय पर प्रोत्साहन की जरूरत है जब हम अपनी विश्वास की यात्रा में चलते हैं, क्योंकि हम भी चुनौतियों का सामना करेंगे। ऐसी चुनौती जो हमारी सहायता कर सकते हैं और ऐसी चुनौती जिससे हम कठिन रास्ते से होकर गुजरते हैं। और ऐसे समय पर हमें लोगों की आवश्यकता होती है जो विश्वास के लोग हैं, ताकि हम प्रोत्साहित हो जाएं, ताकि हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, हम ताकतवर हो जाएं और हम दूसरों की सहायता करें ताकि हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम में से प्रत्येक विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें और परमेश्वर हमें वह नम्रता दे दे ताकि हम दूसरों के द्वारा प्रोत्साहित हो जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं और तुझे आदर देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम अपने विश्वास की यात्रा में दूसरों को प्रोत्साहित करें और स्वयं भी प्रोत्साहित हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।